میرے اور آپ کے آقا کے آنے سے پہلے غریبوں کی وہ کوئی قدر و منزلت نہ تھی، غریبوں کا کوئی سکون اور سہارا نہ تھا، یہاں تک کہ آقا کے آنے سے پہلے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی نظام سیاست بھی نہیں تھا۔ آؤ آخری گفتگو کرنے چلا، آخری بات کرنے چلا۔ اے اللہ کے نیک بندو، میرے اور آپ کے آقا کے آنے سے پہلے عرب کی اس سرزمین پر کوئی حاکم اور کوئی سردار متعین نہیں تھا، بلکہ جس کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی وہی حکومت کرتا، جس کے ہاتھوں میں پاور ہوتی وہی حکومت کرتا، جس کے یہاں مال و دولت زیادہ ہوتا وہی حکومت کرتا، جس کے یہاں لڑکوں کی تعداد زیادہ ہوتی وہی حکومت کرتا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر تشریف لائے، لاتے ہی اعلان کر دیا، کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ اب سے اگر کسی کو سرداری دی جائے گی، اب سے اگر کسی کو ذمہ داری دی جائے گی، لہذا وہ ذمہ دار ان کا خادم ہوگا، ان کا حاکم نہیں ہوگا، ان کا سردار نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کا خادم ہوگا۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوگا، حکم چلانے والا نہیں، رعایا کو غلام سمجھنے والا نہیں، غریبوں کا فائدہ اٹھانے والا نہیں، کمزوروں کا فائدہ اٹھانے والا نہیں، اپنے طاقت کے بھروسے پر اپنے عیبوں کو چھپانے والا نہیں، بلکہ اعلان کر دیا تھا میرے آقا نے، آج سے اس شریعت کے اندر جو بھی کسی کا سردار بنے گا، کسی کا حاکم بنے گا، وہ ان کا خادم ہوگا، خدمت کرنے والا ہوگا، وہ ان کی رعایا کی عزت و عظمت کرنے والا ہوگا۔ آؤ تمہیں آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرے آقا نے صرف حکم فرمایا ہونا، اللہ کے بندو میرے آقا نے کر کے بھی دکھایا۔ میرے آقا نے آؤ کتنے موقع بتلاؤ، غزوہ خندق کا موقع ہے، خندق کھودنے کے لیے کہہ دیا ہے، خالی تقریر نہیں کی بلکہ صحابہ کے ساتھ میرے آقا نے خندق کھودی ہیں۔ حضرت جابر یہاں کی اکثر روایتوں کے حقدار ہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں خندق کھودتے ہوئے ایک وقت ہو گیا، کئی وقت نکل گئے تو ہم سے بھوک برداشت نہ ہوئی، ہاں ہم سے پیاس برداشت نہ ہوئی، ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر کے عرض کیا، یا نبی اللہ، ہاں کئی وقت ہو گئے، ہمیں کھانے کے لیے نہیں ملا ہے، ہم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، جابر تم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے، تمہارا سردار خالی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہارا سردار محنت نہیں کر رہا ہے بلکہ برابر تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اگر بھوک کی وجہ سے تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے تو تمہارے سردار کے پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ اے طلبہ کی جماعت، تمہیں تو معلوم ہے حضرت جابر کی اہلیہ نے اللہ کے نبی کے لیے کہا تھا، اے جابر جاؤ اللہ کے نبی کے کان میں جا کر کے کہہ دو میرے محبوب کئی وقت سے بھوکے ہیں، میرے محبوب نے کئی وقت سے کھانا نہیں کھایا۔ اے جابر حضرت نبی علیہ السلام کے کان میں جا کر کے کہہ دو آج جابر کے گھر میں دعوت ہے، اہلیہ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے بنایا ہے۔ چنانچہ میرے بھائی حضرت جابر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ میری اہلیہ نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، آپ چلیے اور اپنے ساتھ ایک دو کو اور لے لیجئے۔ میرے آقا جابر کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، اے جابر کیا کہہ رہے ہو؟ کھانا تیار ہوا ہے۔ چنانچہ میرے آقا جتنے خندق کھودنے والے صحابہ تھے تمام کے تمام کو آواز لگا کر کے کہا تھا، اے صحابہ سنتے ہو، آج جابر کے گھر دعوت ہے، آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ایک دو آدمیوں کا کھانا، لیکن آقا تمام کے تمام قافلے کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ارے آقا فرماتے ہیں، جابر تم نے سوچ کیسے لیا کہ تمہارا سردار کھانا کھا لے اور اس کی رعایا بھوکی رہ جائے، اس کے ماتحت بھوکے رہ جائیں، اس کے ساتھ محنت کرنے والے بھوکے رہ جائیں۔ اے جابر تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ یہ سبق دینا تھا کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب میرے اور آپ کے آقا اس طریقے سے رعایا کی خدمت کرتے ہیں، اس طریقے سے اپنے ماتحتوں کا خیال کرتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندو آؤ تمہیں وہ مشہور بات بھی بتلاتا چلوں۔ او اللہ کے نیک بندو، جب ایک مسافر میرے اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا تھا،
हाँ मेरे आका को मालूम नहीं कि ईमान में है या नहीं है। आका से आकर के क्या कहा था, ए मोहम्मद मुसलमानों के सरदार, हाँ तुमने सुना है कि तुम गरीबों का ख्याल करते हो, मुसाफिरों को जगह देते हो, मुसाफिरों को आराम कराते हो। मेरे आका ने फरमाया हाँ, चुनांचे कहा कि मैं भी मुसाफिर हूँ, लिहाजा मुझे भी आराम कराओ। मेरे आका ने अपना बिस्तरा खाली कर दिया, ना उससे मालूम किया कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, ईमान वाले हो या नहीं हो। मेरे आका ने अपना बिस्तरा पेश कर दिया। हाँ आका ने बिस्तरा पेश किया। हाँ फिर खाना खाने के लिए लाए, कहा ओ मुसाफिर तुमने खाना भी नहीं खाया होगा, लो ये मेरे हिस्से का खाना है, इस खाने को खा करके आराम करो। वो मुसाफिर कहता है मैंने उस खाने को खाया लेकिन खाना बर्दाश्त ना हो सका, मेरा पेट खराब हो गया, लिहाजा मेरे आका का बिस्तर हाँ बिल्कुल खराब हो गया। चुनाचे फरमाते हैं वो मुसाफिर कहता है कि जब मेरी रात में आंख खुली है मैंने देखा कि सरदार का बिस्तर खराब हो गया है, अब मेरी खैरियत में हाँ फर्क आ जाएगा। लिहाजा वो सहाबी, वो अल्लाह का नेक बंदा जो अभी ईमान के अंदर नहीं आया, हाँ वो रात के अंधेरे में उठता है, अगर आका को मालूम होगा कि उनका बिस्तर खराब हो गया तो वो मुझ पर वार कर सकते हैं। लिहाजा वो रात के अंधेरे में उठा है और उठ करके जा चुका है। उसको रास्ते में याद आया कि तेरी कोई चीज वहां पर रह गई है। चुनांचे वो कहता है जब मैं पलट करके आया, हाय हाय आंखों के अंदर आंसू थे, कैसे रोक लेता उन आंसुओं को, क्योंकि उस बिस्तरे को धोने वाला कोई और नहीं, मुसलमानों के आका मोहम्मद अरबी थे, उस बिस्तरे को धो रहे थे। वो कहते मैं सब कुछ भूल गया और मैं जानवे तलम्मुज़ हो करके आवाज लगाने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह के नेक बंदो, आका के आने से पहले निजाम सियासत कोई नहीं, ताकत वाला गरीब को सताता है, हाँ बेटो वाला गरीब को सताता है, लेकिन मेरे आका ऐलान करते हैं ओ अल्लाह के नेक बंदो सुन लो, आज से जिसको सरदारी दी जाएगी, आज से जिसको सरदार बनाया जाएगा वो अपनी कौम का खादिम होगा, वो अपनी कौम का खिदमत करने वाला होगा। लिहाजा जब आका ऐसे हैं तो उनके तरबियत याफ्ता कैसे होंगे, आओ मुख्तसर से वक्त में बतलाता चलो किस तरह थे मेरे आका के तरबियत याफ्ता। सबसे पहला नाम आएगा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, ये मेरे आका के तरबियत याफ्ता हैं। आका के बाद जिम्मेदारी हजरत अबू बकर के कांधों पर आई है। वो सुनो सिर्फ मुख्तसर वक्त रह गया है, ओ अल्लाह के बंदो सुनो, ओ अल्लाह के शेरो जरा मुतवज्जे हो जाओ, सिर्फ कुछ वक्त के लिए और तुम मुझे बर्दाश्त कर लो। ओ अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के नबी के हाँ तरबियत याफ्ता हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। हजरत अबू बकर को जिम्मेदार बना दिया गया, हजरत अबू बकर खलीफा बन गए, लेकिन जैसे खलीफा बने हैं हजरत अबू बकर सुबह के वक्त में अपने सर पर कपड़ों का गट्ठर लेकर बाजार की तरफ चले हैं, बाजार की तरफ जा रहे हैं। लिहाजा किसी ने देख लिया, अबू बकर कहाँ जा रहे हो, कहा कि अपने बच्चों के ख्याल के लिए, अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए। चुनाचे सहाबा इकट्ठे हुए और मशवरा किया अगर अबू बकर तिजारत करेगा तो रियाया के फैसले कौन करेगा, रियाया के हल्के कौन लगाएगा, रियाया का ख्याल कौन करेगा। चुनाचे सहाबा ने मशवरा किया और ये मशवरा किया कि कोई वजीफा बैतुल माल से हजरत अबू बकर को दे दिया जाएगा ताकि इन्हें तिजारत करने की जरूरत न पड़े। राशन तय हो गया, राशन बैतुल माल से हजरत अबू बकर की खिदमत में आता रहा। एक मर्तबा हजरत अबू बकर अपने दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, बीवी ने हलवा ला करके रख दिया, हरीरा ला करके रख दिया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं मोहतरमा ये हलवा कहाँ से आया, ये हरीरा कहाँ से आया। फरमाया हजरत अबू बकर जो रोज़ाना बैतुल माल से मुझे राशन मिलता है उसमें से मैं रोज़ाना थोड़ा मीठा और थोड़ा सत्तू बचा लिया करती थी। लिहाजा आज वो सत्तू और मीठा जब इकट्ठा हो गया तो मैंने हलवा बना करके तैयार कर दिया। हजरत अबू बकर दस्तरखान पर से उठ गए और उठ करके सीधे बैतुल माल के मैनेजर के पास पहुंचे और जाकर के कहा और राशन के मैनेजर सुन लो, हजरत अबू बकर का इतना राशन कम कर दिया जाए
क्योंकि इतना राशन वहाँ ज़्यादा जा रहा है, मेरी बीवी ने ज़रा ज़रा सा इकट्ठा करके हलवा बना लिया है, लिहाजा इतना राशन कम कर दिया जाए, क्योंकि अबू बकर के घर पर इतना राशन ज़ायद जा रहा है। ए अल्लाह के नेक बंदो, मैं गुफ्तगू करने चला, हजरत अबू बकर जो मेरे आका के तरबियत याफ्ता हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके बाद हजरत उमर का नंबर आता है। कौन हजरत उमर? आओ मैं बतलाता चलो। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। कैसरो किसरा की नींद जिससे हराम है। शैतान अगर जिस रास्ते से अबू बकर गुजर जाए, उमर गुजर जाए, उस रास्ते पर शैतान की हिम्मत न हो कि मैं इस रास्ते से गुजर जाऊं। लेकिन हाल क्या है, जब अल्लाह ने जिम्मेदारी अता की, जब अल्लाह ने हाकिम बनाया, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बनाया, तो अहलिया फरमाती हैं रात के अंधेरे में जब मीठी नींद लेने का वक्त आता, तो उस वक्त में हजरत उमर बच्चों की तरह हिचकियां लेकर के रोते हैं, बच्चों की तरह सिसकियां लेकर के रोते हैं। मैं करीब जाकर के मालूम करती हूँ, उमर तुम इतने बड़े सरदार हो, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हो, और कैसरो किसरा जैसी हुकूमतें तुमसे घबराती हैं, लेकिन तुम ये रात के अंधेरों में क्यों बच्चों की तरह रोते हो, क्यों बच्चों की तरह हिचकियां लेते हो। और रब्बे काबा की कसम, क्या फरमाया था हजरत उमर ने, और सुनो कौम के जिम्मेदारों, क्या फरमाया था हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। मोहतरमा, तुम जानती हो अल्लाह ने मुझे जिम्मेदार बनाया है, अगर दरियाए दजला के किनारे पर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो अल्लाह कल क़यामत में मुझसे सवाल करेगा, ए उमर ये कुत्ता तुम्हारी जिम्मेदारी में क्यों प्यासा मरा है। इसलिए मुझे रातों को नींद नहीं आती, इसलिए मुझे रातों को सुकून नहीं मिलता। हजरत उमर रातों को गलियों में टहलते, शौक नहीं था, बड़ाई चतलाना नहीं था। अगर बड़ाई चतलानी होती तो दिन के उजालों में घूमते, लोगों को इकट्ठे होकर के रोड शो करते। लेकिन जब तमाम की तमाम मखलूक सो जाती, उस वक्त में हजरत उमर इब्न खत्ताब अपने घर से बाहर रात के अंधेरों में निकलते। कोई नहीं जानता था कि रास्तों में घूमने वाला, हमारी चौकीदारी करने वाला, हमारे घरों की बच्चों की हिफाजत करने वाला कोई और नहीं है, हजरत उमर इब्न खत्ताब है। आओ तुम्हें बतलाता चलो। फरमाते थे जब मैं रात के अंधेरे में जाकर के लेटता तो मुझे नींद ना आती, मैं उठ करके बैठ जाता, मेरे दिल के अंदर ख्याल आता, ए उमर तुम तो सो रहे हो, कहीं कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है, कहीं कोई भूखा तो नहीं मर रहा है। इसलिए मैं अपने बिस्तर से उठ करके गलियों में टहलने लगता, कहीं कोई भूखा मिले तो खाना खिलाओ, कहीं कोई प्यासा मिले तो पानी पिलाओ, कहीं कोई बरहाना मिले तो कपड़े पहनाओ। हजरत उमर फरमाते थे मुझे सुकून न मिलता था, इसलिए मैं रात के अंधेरों में गलियों में टहलने लगता। ओ अल्लाह के नेक बंदो, किस्से तो बड़े सारे, लेकिन एक मर्तबा हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं, अपने घर से निकल करके चले गए। देखते हैं एक घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई कुछ बक रही हैं। चुनांचे हजरत उमर करीब जाते हैं तो बूढ़ी अम्मा हजरत उमर कोई बुरा भला कह रही है। हजरत उमर कहते हैं अम्मा हजरत उमर को क्यों बुरा कह रही हो। फरमाती हैं कि मैं कई दिन की भूखी हूँ, कई वक्त की प्यासी हूँ, लेकिन अबू उमर को मेरी भूख का ख्याल नहीं। हजरत अबू बकर हजरत उमर फरमाते हैं अम्मा हो सकता है उमर को तुम्हारी भूख के बारे में मालूम ना हो, तुम्हारी परेशानी के बारे में मालूम ना हो। क्या फरमाया था बूढ़ी अम्मा ने, अगर उमर को मेरी भूख का मालूम नहीं तो उसे जिम्मेदार बनने का भी कोई हक नहीं, उसे जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए, उसे जिम्मेदारी से एक तरफ हो जाना चाहिए। अगर उसे गरीब की परेशानी का ख्याल नहीं, अगर उसे गरीब की भूख का ख्याल नहीं। हालांकि हजरत उमर इब्न खत्ताब वहीं पर बैठे हुए हैं, वहीं पर तशरीफ रखे हुए हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा कह रही हैं उमर को जिम्मेदारी का कोई हक नहीं है, उमर को कोई हक नहीं है जिम्मेदारी का, उसे जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए। लिहाजा अगर मुझ जैसा और आप जैसा होता तो बूढ़ी अम्मा का हिसाब बराबर कर देता, लेकिन हजरत उमर बैठे हुए सुन रहे हैं। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कल कयामत का मैदान होगा,
मैं उमर के दामन को पकड़ करके खड़ी हो जाऊंगी कि अल्लाह तूने इसे जिम्मेदार बनाया, लेकिन इसने गरीबों का ख्याल न किया, कमजोरों का ख्याल न किया। चुनाचे हजरत उमर की आंखों में आंसू हैं, फरमाते अम्मा जरा रुक जाओ। चुनाचे मेरे हजरत उमर अपने बैतुल माल की तरफ चलते हैं और जाकर के अपने गुलाम असलम से कहते हैं, असलम जरा सा सत्तू, जरा सा सत्तू किसी कट्टे के अंदर कर दो, किसी बोरी के अंदर कर दो, खाने की चीजें बोरी के अंदर कर दो, और असलम जब ये तैयार हो जाए आओ मेरी कमर पर रख दो। असलम कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे ये क्या कर रहे हो, लाओ इन सामान को उठाने के लिए हम नौकर तैयार तो हैं। लेकिन हजरत उमर कहते हैं तू क्यों बोझ उठाता है? अरे जब कयामत में तू बोझ नहीं उठा सकता, कयामत का मैदान होगा, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कयामत के मैदान में कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। जब तू वहां बोझ नहीं उठा सकता, यहाँ क्यों उठाने चला? चुनाचे कहते हैं ला इसको मेरी कमर पर लाद दे। चुनाचे हजरत उमर उसको अपनी कमर पर लाद देते हैं और लाद करके चल देते हैं बूढ़ी अम्मा के घर, लेकर के जाते हैं, आटा गूंथते हैं, खाना तैयार करके अम्मा को अपने हाथों से लुकमा बना करके खिलाते हैं। जब ये मामला हो रहा है तो हजरत अली का गुजर हुआ हजरत उमर को देखकर कि एक बूढ़ी अम्मा को हाकिम होते हुए, हुक्मरान होते हुए एक बूढ़ी अम्मा को खाना बना करके खिला रहे हैं। हजरत अली दूर से कहते हैं अस्सलामु अलैका या अमीरुल मुमिनीन। इतना सुनते ही बूढ़ी के नीचे से जमीन निकल गई। जो अब तक जिसे तू सुना रही थी वो कोई और नहीं हजरत उमर ही थे, जो तेरी खिदमत कर रहा था वो कोई और नहीं हजरत उमर ही थे। लिहाजा बूढ़ी घबराने लगी। हजरत उमर फरमाते अम्मा घबराने की जरूरत नहीं है, ये खिदमत मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने अल्लाह के लिए की है। अब बताओ तुमने उमर को कैसा पाया? हजरत उमर के लिए अम्मा हाथ उठा लेती हैं और कहती हैं अल्लाह उमर को कभी हमसे दूर न करना, उमर को कभी हमसे दूर न करना। अम्मा मैं ये दुआ नहीं लेना चाहता, सिर्फ ये लिख करके दे दो कि कल कयामत के मैदान में तुम मेरे दामन को नहीं पकड़ोगी, सिर्फ इतना लिख करके दे दो। इसलिए मेरे भाई आका के आने से पहले गरीबों का कोई ख्याल करने वाला न था, कमजोरों का कोई ख्याल करने वाला न था। लेकिन मेरे आका आए, गरीबों को सीने से लगाया, निज़ाम सियासत समझाया और जो हाकिम बन जाए उनको गरीबों का ख्याल करने वाला बनाया। ए अल्लाह के नेक बंदो, तुम भी इरादे करो कि इंशाअल्लाह हम भी गरीबों का ख्याल करेंगे, हम भी कमज़ोरों का ख्याल करेंगे, हम भी औरतों की कदरदानी इंशाअल्लाह करेंगे। अगर माँ होगी तो खिदमत करेंगे, अगर बहन होगी तो कदर करेंगे, अगर बेटी होगी तो अल्लाह की रहमत समझेंगे, अगर बीवी होगी तो उनको इज्जत देंगे। लिहाजा मेरे भाई अगर अल्लाह जिम्मेदारी देगा तो इंशाअल्लाह गरीबों का ख्याल करेंगे, गरीबों का ख्याल करेंगे।